Good evening, Namaste. I welcome you all to the Hindi study class on this Friday evening, on the Sunday evening for the book Self Culture in the Light of the Ancient Wisdom, Part 3, Chapter 11. Chapter 11, yeah. So before we start the session, I would request all of you to join me in the universal prayer, and then we will introduce the speaker of the day, and then the session will proceed. O hidden life, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. Okay, so our subject is self-culture in the light of the ancient wisdom. As we already know this book, we will be conducting the chapter 11. It talks about the stages of knowledge, wisdom, and realization. Today's speaker to take it up is Brother Shikhar Agnihotri. We all know him. He doesn't need an introduction. However, as a formality, I would be telling few words about him. We know that he was working in the merchant navy and he retired voluntarily to know and spread theosophy in his inner journey. He joined the TS in 2008, inspired by his mother, Mrs. Vasumati Agnihotri ji. Shikhar is a founder member of the Theosophical Society lodges and groups, and by name Pragya Lodge and Maitri Group in Lucknow. He is a national lecturer and an international speaker, has conducted multiple study camps, seminars, youth camps, a lot of lectures, and he has conducted online sessions. He has published his articles in many national and international magazines in languages like Hindi, English, and he also translated into French and Spanish. We all know about his Pragya CS Studio, his YouTube channel, wherein he keeps on sharing a lot of helpful and suggestive videos about theosophy. He's the one who created the online platform of Young Indian Theosophist, YIT, and he's a founder member of the YIT core group also. Currently, Shikhar is volunteering in the administration office as executive assistant to the GM, and is residing with family at the international headquarters of the TS in Adyar, Chennai. So over to you. You can introduce the chapter, or if you want to present something, you can share your screen. And over to you. बहुत बहुत धन्यवाद सोरेलिना जी फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड सभी आत्मीय बंधुओं को सादर प्रणाम। जस्ट एक करेक्शन, जो चैप्टर आज हम लोग लेंगे दैट इज चैप्टर 19, दैट इज चैप्टर 19 ऑफ जो पुस्तक है सेल्फ कल्चर, आत्म साधना। टैनी जी ने जो लिखी है आत्म साधना पुस्तक, उसका जो चैप्टर 19 है वो हम लोग आज ले रहे हैं, जिसका की शीर्षक है कि द स्टेजेस ऑफ नॉलेज, विजडम एंड रियलाइजेशन। इसको हम कह सकते हैं ज्ञान, प्रज्ञान और आत्म साक्षात्कार की जो स्टेप्स हैं, स्टेजेस हैं, लेवल्स हैं, उनके बारे में टैमनी जी इस चैप्टर में बात कर रहे हैं। और हम सभी लोग जानते हैं कि टैमनी जी की जो पुस्तकें हैं वो हर विषय को इतना साइंटिफिक और इतना जिसे कहते हैं ना पेडागोजिकल मेथड से, कि एग्जाम्पल्स दे दे के, और जिससे कि मतलब इस जो कोई भी व्यक्ति उसको पढ़े उसको आसानी से समझ में आ जाए, ऐसी भाषा का प्रयोग वो करते हैं और उतनी तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए फर्स्ट पार्ट में उन्होंने
सारे जो हमारे कोश हैं, स्थूल शरीर, एस्ट्रल बॉडी, मेंटल बॉडी, बुद्धिक बॉडी, इन सब के बारे में समझाया है, कैसे उनका क्या उनका उपयोग है, क्या कार्य है, और कैसे उनको हम आगे विकसित कर सकते हैं। तो उसके बाद जो सेकंड भाग है, उसमें ये चैप्टर 19 है, जो उन्होंने आगे जाने से पहले इसके बारे में थोड़ा समय उस पे दिया है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेरे ख्याल से ये चैप्टर एक तरीके से पुराने जो चैप्टर्स हैं उनका एसेंस तो नहीं, बट एक तरीके से बहुत ही, अगर सिंथेसिस जिसको कहते हैं, ब्रीफ, वो एक तरीके से इस चैप्टर को हम लोग समझ सकते हैं। और बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र उन्होंने इस चैप्टर में शेयर किए हैं। तो पहला तो वो यही कहते हैं कि जो हम लोगों ने अभी तक मोनैड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मोनैड क्या है, कैसे वो काम करता है, उसके बारे में पढ़ा है। कैसे जो स्पिरिचुअल प्लेन्स हैं, जो आत्मा, बुद्धि, मनस, हायर मनस का जो प्लेन है, उसमें वो कैसे अपने आप को एक इमॉर्टल, अमर इंडिविजुअलिटी के रूप में प्रस्तुत करता है। और जो लोअर थ्री प्लेन्स हैं, फिजिकल, एस्ट्रल और लोअर मेंटल, उसमें वो एक अपने को पर्सनैलिटी, टेम्पररी पर्सनैलिटी के रूप में प्रकट करता है, जिसको हम लोग पर्सनैलिटी को देहात्मा भी कहते हैं और इंडिविजुअलिटी को जीवात्मा भी कहते हैं। तो जो हमारी देहात्मा है, ये बेसिकली अगर इसको देखें तो इसी का हर बार एक तरीके से जन्म होता है, और जिसको हम जन्म मृत्यु कहते हैं, वो इसी देहात्मा तक सीमित है। और हर जीवन, हर जन्म में जो अनुभव, जो एक्सपीरियंस जो देहात्मा के माध्यम से मिलता है, और जो मानसिक विकास होता है, जो स्पिरिचुअल फैकल्टीज डेवलप होती हैं व्यक्ति के अंदर, वो सारा का सारा जो एसेंस है, वो इस जन्म के अंत में, यानी मृत्यु के समय, या मृत्यु का जो प्रोसेस है, उसमें ये देहात्मा जीवात्मा को सौंप देता है अंतःकरण के माध्यम से। और अपना पूरा एसेंस जो है पॉजिटिव वाला, वो उसको सौंप के स्वयं एक तरीके से बिखर जाता है। तो फैमिली जी कह रहे हैं कि इस दृष्टि से देखें तो जो देहात्मा है, उसका कोई इवोल्यूशन की बात नहीं हो रही है। वो तो हर जन्म में एक तरीके से नया भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वृत्तियां तो पुरानी हैं, लेकिन जो फॉर्म आ रहा है, वो, उसको हम एक तरीके से कह सकते हैं, वो एक उसी पर्टिकुलर जन्म के लिए है। वृत्तियां कंटिन्यू कर सकती हैं जन्म पर जन्म, लेकिन जो उसका फॉर्म है, जो उसका एक्सप्रेशन है, वो हर जन्म में यूनिक है। तो उसका इवोल्यूशन की बात उतना नहीं कर सकते हैं जितना कि हम जीवात्मा के इवोल्यूशन की बात करते हैं, क्योंकि जीवात्मा जो है, वो शुरू से लेके एंड एंड तक वो रहता है। इसीलिए उसको इमॉर्टल इंडिविजुअलिटी कहा गया है। देहात्मा को ये कह सकते हैं कि हर जन्म में जैसे जैसे जीवात्मा इवॉल्व करता जाता है, तो उसको अपने एक्सप्रेशन के लिए एक ज्यादा फाइन, ज्यादा संवेदनशील, ज्यादा विकसित देहात्मा की जरूरत पड़ती है। और लेकिन ये भी ऑटोमेटिकली होता है, क्योंकि हर जन्म में जीवात्मा जैसे थोड़ा सा ग्रो किया, इवॉल्व किया, तो या देहात्मा ने उस जन्म में व्यक्ति ने अच्छे कार्य किए, तो उसके जो स्ट्रक्चर है, जो एटम्स हैं, बेसिकली जो परमानेंट एटम है, वो ग्रो करता है। तो जब वो ग्रो करता है, तो अगले, जब जन्म लेने का टाइम आएगा, तो यही परमानेंट एटम की जो तरंगे हैं, वो बाकी सारे पदार्थ को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगी। तो अब अगर परमानेंट एटम इंप्रूव हुआ है, तो वो हायर क्वालिटी का पदार्थ अपने चारों ओर अट्रैक्ट करेगा। तो उस तरीके से देखें तो जीवात्मा को अगले जन्म में एक बेहतर व्हीकल मिलेगा। तो ये
मतलब प्योरली अगर ये कहें कि देहात्मा इवॉल्व नहीं कर रहा है तो ऐसा नहीं है। देहात्मा भी उस जन्म में जो हमें जन्म के समय मिला था, हमारा शरीर, स्थूल शरीर, हमारा प्राणिक शरीर, हमारा भावनात्मक शरीर और हमारा लोअर मेंटल बॉडी, और मृत्यु के टाइम पे जो हमारी स्थिति है, तो उन दोनों में अगर व्यक्ति इस मार्ग पे है, हालांकि काफी काफी जन्म व्यक्ति के एक ही स्टेज में निकल जाते हैं और कोई प्रोग्रेस नहीं होती दिखाई पड़ती, क्योंकि 2 कदम हम आगे बढ़ते हैं, 2 कदम पीछे चल जाते हैं, तो जो नेट रिजल्ट है वो बहुत ज्यादा दिखता नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस मार्ग पे दृढ़ता के साथ चल रहा है, तो जन्म के समय का उसका देहात्मा और मृत्यु के समय का देहात्मा में काफी इवोल्यूशन हो चुका होता है उस जन्म के लिए। फिर अगले जन्म में उसको नया शरीर मिलते हैं उसी हिसाब से। तो इस तरीके से देखें, जो जीवात्मा है या जो इंडिविजुअलिटी है, वो बेसिकली हमेशा है, और वो अपने, इसको हम इस चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि ये तैमनी जी की पुस्तक से है, आदि, प्लेन, अनुपादक और आत्मिक, बुद्धिक, मानसिक, एस्ट्रल और फिजिकल में। उसमें आप जो सबसे छोटा सर्कल देख रहे हैं, जो कि स्थूल शरीर, भावना शरीर और निम्न मनोमय शरीर में, वो हमारा पर्सनैलिटी है या देहात्मा। उससे बड़ा सर्कल जो है, जो कि लोअर आत्मिक, बुद्धिक और उच्च मानसिक और पूरा नीचे तक, ये जीवात्मा का कार्य क्षेत्र है। और उससे भी बड़ा देखें, आदि प्लेन तक, तो वो मोनैड का क्षेत्र है। और उससे भी अगर बड़ा क्षेत्र देखें, तो वो लोगोस, यानी जो ईश्वर है ब्रह्मांड का, उन उनका क्षेत्र है। इसी चित्र को थोड़ा सिंप्लीफाइड तरीके से अगर हम लोग यहाँ देखें, तो इसमें जो सबसे ऊपर प्लेन हम देख रहे हैं वो तो आदि प्लेन है। तो इसमें देखिए, अनुपादक प्लेन पे कहा जाता है कि मोनैड अपने मूल स्वरूप में रहता है। और क्योंकि एक्चुअली जो इवोल्यूशन है वो जीवात्मा का भी नहीं हो रहा है, क्योंकि जीवात्मा भी एक तरीके से रिलेटिवली अमर है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब वो भी छोड़ दिया जाता है, जीवात्मा का भी जो अस्तित्व है वो खत्म हो जाता है। तो असल जो इवोल्यूशन है, जो विकास है, विकास भी नहीं है, एक तरीके से एम्पावरमेंट है, वो है मोनैड का। कि अपने प्लेन पे तो मोनैड सर्वशक्ति, आई मीन ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह प्रेजेंट है, पावरफुल है, लेकिन नीचे के लोकों में उसका कोई अनुभव नहीं है। तो उस अनुभव को लेने के लिए पहले आप देखें यहाँ पे, ये आत्मा, बुद्धि, मनस ये का जो एक त्रिपुटी है, वो उतारता है अपने 3 एस्पेक्ट से, विल, विजडम और एक्टिविटी। तो इसको हमने जीवात्मा नाम दिया है। ये जीवात्मा भी लेकिन चूंकि इसी लेवल पे है, तो नीचे के अभी भी प्लेन्स जो हैं उस पे कोई अनुभव नहीं है। तो वो फिर से नीचे अपना एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव उतारता है, मनोमय, निम्न मनोमय लोक में, एस्ट्रल लोक में और फिजिकल लोक में। परमानेंट, बेसिकली उस लेवल पे वो एक एक परमानेंट एटम को चूज कर लेता है, अपने प्रभाव में ले लेता है। और ये परमानेंट एटम्स इसीलिए परमानेंट एटम्स कहे गए हैं, क्योंकि ये शुरू से लेके अंत तक, जब तक कि व्यक्ति जीवन मुक्त नहीं हो जाता है, या जब तक कि वो धर्म काया, संभोग काया या निर्माण काया की स्थिति में नहीं पहुंच जाता है, जहां उसके पास चॉइस रहती है कि वो इन परमानेंट एटम्स को अपने पास रखे या उनको भी छोड़ दे, तब तक ये परमानेंट एटम्स उसके साथ रहते हैं। इसलिए रिलेटिवली इसको हम परमानेंट कह सकते हैं। तो ये इस तरीके से ये प्रोसेस होता है। और तो अब इसमें इंडिविजुअलिटी, जो जीवात्मा का पर्पस क्या हुआ, वही पर्पस जो देहात्मा का है जीवात्मा के लिए। क्योंकि हर जन्म में देहात्मा कुछ अनुभव लेता है,
और वो अनुभव का जो एसेंस है, जो पॉजिटिव एसेंस है, ये बड़ी ध्यान रखने वाली बात है, वो ट्रांसमिट कर देता है अंतःकरण के माध्यम से हायर मनस को या जीवात्मा को। उसी तरीके से जो जीवात्मा है, वो जो अपने इंटर्न में जो इतना सारा अनुभव इकट्ठा कर रहा है, वो पूरा का पूरा जो उसका एसेंस है, वो मोनैड को ट्रांसफर करता है। तो इसको अगर हम ये समझें कि जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, तो अब वो पूरे इंडिया के बारे में उन्हें तो खबर कैसे मिलेगी? तो उन्होंने हर स्टेट में अपने गवर्नर अपॉइंट कर रखे होते हैं। तो गवर्नर जो है वो पूरे स्टेट का जो वो है, वो प्रेसिडेंट को बताता है। अब गवर्नर को भी पूरे स्टेट का कैसे कवर वो कर पाए, क्योंकि उनकी भी सीमित मतलब सीमाएं हैं, हर समय इतना बड़ा जगह है, कैसे करें? तो उन्होंने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में कलेक्टर या डीएम्स जो होते हैं वो अपॉइंट कर रखे होते हैं, जो उस पर्टिकुलर एरिया की जो भी स्थिति होती है वो गवर्नर को रिपोर्ट करते हैं, गवर्नर प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करते हैं। तो इस तरीके से ये जो प्रोसेस है वो चलता है। तो उसी तरह जो जीवात्मा है, उसका अ, जो पर्पस है वो यही है, जो आत्मा बुद्धि मनस पे है, कि अ, ये जो देहात्मा से उसको अनुभव मिल रहे हैं, उसको वो मोनेट तक आगे पहुंचाए। लेकिन साथ में उसका एक और पर्पस ये है कि कैसे वो मोनेड की शक्ति को देहात्मा तक, नीचे तक पहुंचाए। तो डबल, आई मीन, दोनों तरफ से इंटरेक्शन हो रहा है। एक तो देहात्मा से अनुभव मिल रहा है, यानी बाहर से परिस्थितियां हमारी अंतर स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। दूसरी तरफ से मोनैड की जो शक्तियां हैं, जो शक्ति क्या है, विल, विजडम, लव, आत्मा बुद्धि मनस की जो शक्ति है, संकल्प की शक्ति है, प्रेम की शक्ति है, प्रज्ञा करुणा की शक्ति है, उसको देहात्मा के लेवल तक, यानी हमारे जागृत अवस्था तक, यानी हमारे फिजिकल ब्रेन तक, फुल जागृत कॉन्शियसनेस में वो एक्टिवेट या वर्क कर सके, ये दूसरा पर्पस है। तो एक तरफ से अनुभव नीचे से ऊपर आता है, और ऊपर से फिर जो जीवात्मा है उसके जो तीन अंग हैं, आत्मा बुद्धि मनस, वो अपनी शक्तियों को धीरे 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 नीचे उतारता है, अनफोल्ड करता है। तो इस तरीके से पर्सनैलिटी, यानी जो देहात्मा है, वो अनुभव ऊपर भेज रहा है, और ऊपर की जो शक्तियां हैं, उन उनको ग्रहण करके अपना भी इवोल्यूशन कर रहा है। तो इस तरीके से ये देख, मतलब एक साइकिल सा पता चलता है कि मोनैड से जीवात्मा, और जीवात्मा से देहात्मा। और हम अधिकतर समय अपने को देहात्मा ही मान के जीवन जीते हैं, कि मैं ये शरीर हूं, मैं ये इच्छाएं हूं, विचार हूं, जो कि एक तरीके से देखा जाए तो सत्य के कितने दूर है। अगर सत्य हम मोनैड को कहें, तो उस मोनैड का एक रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन है जीवात्मा, और जीवात्मा का एक रिफ्लेक्शन है देहात्मा। तो हम अगर ये देहात्मा को सत्य मान रहे हैं, तो हम अ, एक, इसीलिए उसको इल्यूजन कहा गया है, माया कहा गया है। इसी को हम एक अलग चित्र में इस तरीके से देख सकते हैं, और सिंप्लीफाइड तरीके से, कि आत्मा बुद्धि और उच्च मनस मिला के हमारी जीवात्मा या इंडिविजुअलिटी बनती है, और निम्न मनस और हमारा भावनात्मक शरीर, प्राण शरीर और स्थूल शरीर मिला के देहात्मा बनता है। और इन दोनों को जो कनेक्ट करता है उसको अंतःकरण कहते हैं। और ये अंतःकरण एक तरीके से हायर मनस का ही एक पार्ट होता है, जो एक प्रोजेक्शन होता है बेसिकली, जिसके माध्यम से जो देहात्मा में जो भी अच्छाई जीवन, व्यक्ति ने जो भी अच्छा सोचा है, किया है, अनुभव किया है, वो इसके माध्यम से ऊपर एब्जॉर्ब हो जाता है।
तो इस तरीके से अगर देखें तो जो मनुष्य है, जो एक ह्यूमन बीइंग है, मनुष्य का जो इवोल्यूशन है, जैसे हम कहें कि मनुष्य है क्या, तो हमें लगता है मनुष्य ये शरीर है क्योंकि हम इस फॉर्म में देख रहे हैं। लेकिन मनुष्य अगर देखा जाए तो केवल जो विकास क्रम की जो सीढ़ी है उसमें केवल एक पायदान है, उससे अधिक, ना उससे अधिक कुछ है ना उससे कम कुछ है। हाँ, इसलिए अगर देखें तो विकासक्रम की जो सीढ़ी है वो शुरू होती है एलिमेंटल से, फिर मिनरल्स खनिज होते हैं, फिर प्लांट्स होते हैं, फिर पशु पक्षी होते हैं, फिर मनुष्य होते हैं, फिर मनुष्य के आगे सुपर ह्यूमंस होते हैं या एडप्ट्स होते हैं। तो यानी मनुष्य जो है वो एक उस सीढ़ी में एक स्टेज है इवोल्यूशन की। और वो इवोल्यूशन कैसे, उस स्टेज का जो मुख्य पॉइंट है वो क्या है, जो उसको इतना महत्वपूर्ण माना गया है मनुष्य की स्टेज को, कि कहते हैं कि देवता लोग भी जो हैं वो मनुष्य के रूप में जन्म लेना चाहते हैं, क्योंकि मनुष्य स्टेज विकास की वो स्टेज है जिसमें स्पिरिट यानी आत्मा और पदार्थ मैटर, वो दोनों जो मन है, मन के माध्यम से, माइंड के माध्यम से कनेक्टेड रहते हैं। और ये पूरी पॉसिबिलिटी रहती है कि स्पिरिट पूरी तरीके से मैटर को स्पिरिचुअलाइज कर दे मन के माध्यम से, या अगर व्यक्ति दूसरी दिशा में जा रहा है तो मैटर जो है वो पूरी इतना प्रभावित कर दे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को मनुष्य के, कि स्पिरिट से उसका संपर्क ही कट जाए। जैसा कि बहुत ही लेकिन रेयर केसेस में होता है। और इसीलिए जो इन्वोल्यूशन है, पहले स्पिरिट का पदार्थ में आना और फिर पदार्थ से फ्री होना, तो यही जो मोनैड का प्रोसेस है कि पहले धीरे धीरे वो पदार्थ में आता है, उसको परवेट करता है, और धीरे धीरे फिर उसी के उससे मुक्त अपने आप को करता है। लेकिन केवल अंतर ये रहता है कि अब वो हर प्लेन पे की जो उसकी शक्तियां हैं वो जागृत होती हैं और उसके कंट्रोल में होती हैं। तो ये इवोल्यूशन का प्रोसेस है कि इवोल्यूशन जो है वो टैमनी जी कहते हैं वो नीचे से ऊपर की ओर होता है। इन्वोल्यूशन हमने देखा वो ऊपर से नीचे की तरफ हुआ, क्योंकि स्पिरिट जो है, आत्मा तत्व जो है वो पदार्थ में प्रवेश कर रहा है। फिर इवोल्यूशन जो है वो जाहिर सी बात है नीचे से ऊपर की होगा। तो अब हालांकि नीचे ऊपर जो है बड़ा रिलेटिव शब्द है यहाँ पे, लेकिन अगर चेतना के एक्सपेंशन के हिसाब से देखें तो जो आत्म तत्व है वो तो सर्वव्यापी है। बुद्धि तत्व जो है लेवल है वो उससे थोड़ा सा उसमें सेपरेशन का भाव है हायर। उस फिर मन लेवल आता है जो मेंटल प्लेन, उसमें और ज्यादा सेपरेशन का वो लेवल रहता है। तो इसलिए उच्च मन, बुद्धि और आत्मा, तो इसको इस ऑर्डर में विकास होता है जनरली। लेकिन ये तैमनी जी कह रहे हैं कि इस ऑर्डर में विकास होता है, लेकिन वो व्यक्ति किस रे का है या किस मूलभूत टाइप का है, ये भी थोड़ा सा प्रभावित करता है कि कौन सा पार्ट व्यक्ति का पहले पहले या ज्यादा मतलब प्रोमिनेंस से वो विकास करेगा। लेकिन ज्यादातर केसेस में वो ये कहते हैं कि जो मनस है, उच्च मनस है, वो सबसे पहले अनफोल्ड होता है, और तब उसके बाद बुद्धि, और अंत में आत्मा। और इसी क्रम को एक आम जो साधक है उसको भी फॉलो करना चाहिए। लेकिन और इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण भी अगर हम देखें, मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोग ने, जैसे साइंस में मान लीजिए एक पाइपलाइन है,
और ऊपर एक पानी का स्रोत है, टैंक है, और उसमें एक नीचे एक वॉल्व ऊपर है और एक टंकी नीचे है। तो अब हमें पानी का फ्लो बनाना है उसमें, तो हमेशा नीचे वाली जो टंकी है, टैप है, उसको पहले खोला जाता है और फिर ऊपर वाली टंकी को खोला जाता है। और जैसे ही उसको खोलते हैं, पानी जो वेग से है वो नीचे आएगा और बिना किसी अवरोध के वो जहां उसको बहना है वो बह जाएगा। अगर हम वो नहीं करते हैं, ऐसा मान लीजिए हमारे नीचे वाली टैप तो बंद है, वॉल बंद है, और हमने ऊपर का टैप खोल दिया, तो ये जो हाइट जितनी है पाइप की, उतना पानी, बहाव से उतना पानी आएगा, और वो जो नीचे टंकी होगी वो बंद होगी, तो उस पर बहुत प्रेशर पड़ेगा, तो वो उसको तोड़ भी सकती है। इतना प्रभाव पानी का या लिक्विड का होगा। तो इसी को अगर हम एनर्जी लेवल पे इमेजिन करने की कोशिश करें, कि अगर मान लीजिए मन अभी हमारा शुद्ध हुआ नहीं, अभी हमारी देहात्मा जो है, वो हमने जो कि थियोसॉफी में हम लोग पढ़ते हैं कि कई लोग जो साइकिक्स पावर्स और कुंडलिनी जागरण और इस तरीके की जो चीजों में लग जाते हैं बिना अपने चित्त को शुद्ध किए हुए, तो उसके क्या गलत परिणाम आ सकते हैं। तो उसका यही कारण है कि पहले हम नीचे से ऊपर चलें, हम नीचे की अपनी सफाई करते चलें। उसी तरह से जो उच्च मनस है, उसकी शक्ति जो है वो धीरे धीरे हमारे मन को प्रभावित करेगी, हमारे ब्रेन को और एस्ट्रल बॉडी को। जब उस लेवल पे हम एक्लिमेटाइज हो जाएंगे, अडेप्ट हो जाएंगे, तो धीरे से बुद्धि की जो शक्ति है वो मन को एनलाइटन करेगी। उसमें एक प्रोसेस, एक टाइम लगेगा, और फिर धीरे धीरे जब वो आगे बढ़ेगा, तब जो आत्मा की जो शक्ति है वो जब इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में जागृत अवस्था में आएगी, तो फिर कोई भी हार्म होने का या कोई भी मतलब नुकसान होने का चांसेस जो है वो नहीं रहेगा। तो एक तो ये हुआ। दूसरी चीज ये है, हर जो हमारा प्रिंसिपल है, फिजिकल, एस्ट्रल, लोअर मेंटल, हायर मेंटल, बुद्धिक, आत्मिक, हर तत्व का के साथ सब सब डिविजन्स हैं, और हर तत्व में ये सातों हैं। इसको मैं इस तरीके से समझाऊं कि जो हमारा फिजिकल प्रिंसिपल है उसके सब डिविजन्स हैं, उसमें भी एक फिजिकल है, एक एस्ट्रल है, मेंटल है, बुद्धिक है और आत्मिक है। इसी तरह एस्ट्रल का भी एक फिजिकल है, एस्ट्रल है, मेंटल, बुद्धिक, आत्मिक है। तो यानी हर लेवल पे वो एक जो जिसे आजकल आप लोगों ने शब्द सुना होगा, फ्रैक्टल, यानी जो माइक्रोकॉज्म जो है वो मैक्रोकॉज्म की तरह ही है। बेसिकली मैक्रोकॉज्म कई माइक्रोकॉज्म से बना हुआ है। तो हमारे हर छोटे से भाग में वो पूरे जो विराट की संभावनाएं हैं वो छुपी हुई हैं। और यही कारण है कि जो आत्म साक्षात्कार होता है वो, उसका कारण भी यही है, क्योंकि हम वो चीज अनुभव ही नहीं कर सकते जो हमारे अंदर ऑलरेडी नहीं है। तो इसीलिए ये जो विकास है, जो इवोल्यूशन है, ये हर लेवल पे पैरेलल भी चलता रहता है। ऐसा नहीं कह सकते कि पहले पूरा मनस डेवलप हो जाएगा तभी बुद्धि डेवलप होगी, फिर जब बुद्धि पूरी डेवलप हो जाएगी तभी फिर हम आत्मा के अनफोल्डमेंट का प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं है, वो पैरेलल चलती हैं। और एक और जो इंटरकनेक्शन हमारे इन तत्वों में है, हमारा उच्च मनस और लोअर मनस एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ऐसे ही हमारा बुद्धिक बॉडी जो है वो हमारी एस्ट्रल बॉडी को से प्रभावित, एक इसको अर्लियर जो चैप्टर्स हैं उसमें तैमिनी जी ने समझाया, बताया है कि एक अकल्ट तरीके से जो है ये कनेक्टेड है। तो इसीलिए देखिए जो बुद्धिक प्लेन पे प्रेम करुणा जो है, वो एस्ट्रल प्लेन पे वो डिजायर के फॉर्म में या अटैचमेंट के फॉर्म में
वो मतलब एक्सप्रेस होती है, क्योंकि बुद्धिक प्लेन पे सेल्फलेस है, लेकिन एस्ट्रल प्लेन पे चूंकि उसमें सेल्फिशनेस ऐड हो गई है, तो वो थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो गई है, लेकिन वो है रिलेटेड। और इसी तरीके से जो आत्मिक प्लेन है वो हमारी फिजिकल बॉडी से कनेक्टेड है, एक तरीके से रिफ्लेक्शन है। और यही कारण है कि जब हम किसी भी हम कोई भी विचार करते रहें अच्छे से अच्छा, लेकिन जब तक हम उसे फिजिकल प्लेन पे नहीं कर लेते, हमारा आत्मविश्वास नहीं बढ़ता। मेरे ख्याल से सभी का ऐसा अनुभव होगा कि हम लाख पढ़ लें, हम हेलीकॉप्टर मान लीजिए, हमने पूरा उसका मैनुअल पढ़ लिया और सब कुछ कर लिया, और सिमुलेटर में भी जाके मान लीजिए ट्राई कर लिया, लेकिन जब तक हम रियल चीज को नहीं करेंगे तब तक हमें वो आत्मविश्वास नहीं आएगा। और इसी प्रकार से हमें अच्छे विचार तो आ रहे हैं किसी की मदद करने के लिए, लेकिन अगर हम उन्हें इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं तो उस दिशा में हमारा विकास नहीं होगा। तो इसीलिए जो हमारा आत्मिक तत्व है वो वो हमारे कर्म से जुड़ा हुआ है। इसीलिए ज्ञान योग को कहा गया है वो हायर मनस लोअर मनस के इंटरेक्शन पे है। जो भक्ति योग है वो बुद्धिक प्लेन और एस्ट्रल प्लेन को प्रभावित करता है। और जो कर्म योग है वो आत्मा और फिजिकल उससे इंटरेक्शन से होता है। तो अब इनको तीनों को मतलब करने के लिए क्या हम थियोसॉफी में पढ़ते हैं कि क्या विधि नहीं बल्कि क्या मार्ग बताया गया है। तो वो मार्ग मेरे ख्याल से अब सभी लोग जानते हैं, अध्ययन, ध्यान और निस्वार्थ सेवा का मार्ग बताया है। तो आई के तैमिनी जी सबसे पहले कहते हैं कि शुरुआत किससे करें, कि अगर अब हमें उच्च मनस का अनफोल्डमेंट करना है तो उसके लिए अध्ययन की बहुत आवश्यकता होती है। लेकिन अध्ययन किस तरीके का? वो कहते हैं कि जब हम जो हमारे जो प्रकृति है, जो चारों ओर जो चीजों को हम देख रहे हैं, उसमें हम जब उनके रियलिटी का, उनकी वास्तविकता का, या जो संसार है कि ये ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, जैसा कि एक तरीके से कहें भाई, जैसे गौतम बुद्ध ने देखा कि भाई किसी की व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, कोई बीमार पड़ा है, किसी को कुछ परेशानी है, तो प्रश्न उठा कि भाई ये हो रहा है तो ये मेरे साथ भी होगा। जब मेरे साथ होगा तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मुझे तो उसका सॉल्यूशन खोजना चाहिए। या व्यक्ति जन्म के पहले कहाँ होता है, या मैं यहाँ हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इस तरीके के जब हम विषयों पे चिंतन करते हैं, अध्ययन करते हैं, डिस्कशन करते हैं, और केवल वही मतलब ऐसा नहीं है कि केवल डिस्कशन करने के लिए कर रहे हैं कि भाई अब तो हमें डिस्कशन करने में मजा आने लगा, अच्छा वो भी एक टाइम पास का तरीका है, वो नहीं। लेकिन जब हमारे अंदर वास्तविक ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है जानने की, तब हम ना केवल उसमें अध्ययन करते हैं बल्कि उसको जानने के लिए कुछ एफर्ट भी करते हैं। कि भाई हम अध्ययन उसमें कहा कि ठीक है आपको करना है तो आप कुछ देर ये एक सूत्र है, महावाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि, इस पे आप कंtemplate करिए। तो केवल हमने केवल डिस्कशन ही नहीं किया, हम उस पे एफर्ट भी कर रहे हैं। और जब हम इस तरीके के दर्शन के जो फिलोसफिकल कंसेप्शंस हैं उनको, और जो जीवन की जो छिपी हुई सत्य हैं, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो तीसरा उद्देश्य है, अनएक्सप्लेन्ड लॉज ऑफ नेचर एंड पावर्स लेटेंट इन ह्यूमन बीइंग, उनको कोशिश करते हैं जानने की, समझने की, उससे हमारा जो उच्च मनस है वो डेवलप होना शुरू या अनफोल्ड होना शुरू करता है। ये वैसे ही है जैसे हम हम किसी व्यक्ति को मसल बनानी है, मतलब फिजिकल बॉडी में। तो भाई पहले तो उसने पढ़ लिया कि अपनी डाइट में ये चेंज करना है मुझे, और एक्सरसाइज करनी है। तो अब पढ़ तो लिया, लेकिन
अब उसको अप्लाई भी करें तो वो अप्लाई करेगा, फिर एक्सरसाइज जो भी वजन उठाना है या ये जो करना है, तो मसल्स धीरे धीरे डेवलप होंगे। उसी तरीके से जब हम इस तरीके के विषयों को अध्ययन करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, तो हमारी जो उच्च मनस की जो मसल्स हैं, एक तरीके से कहा जाए, वो एक्टिवेट होना शुरू होती हैं, अनफोल्ड होना शुरू होती हैं। और जब हम जीवन में एक हम जिसे कहना कहा जाए कि हम छोटे छोटे भागों को देखने के बजाय जब हम थोड़ा बड़ी पिक्चर देखने की कोशिश करते हैं, यानी जनरलाइजेशंस करते हैं, तब भी ये हमारा उच्च मनस जो है वो डेवलप होता है। यानी जिसको हम लोग कॉन्क्रीट माइंड और एब्स्ट्रैक्ट माइंड कहते हैं। कॉन्क्रीट माइंड क्या है? मान लीजिए हम मोबाइल का एग्जांपल लें, तो मोबाइल जब हम कहेंगे कि, तो मोबाइल की कितनी कंपनियां हैं और कितने उनके मॉडल्स हैं, हजारों की संख्या में होंगे या लाखों की संख्या में हो सकते हैं। तो अब एक एक को तो समझने जाएंगे तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा। लेकिन अगर हमने मोबाइल का जो एसेंस है, वो जो डेफिनेशन है उसकी, वो हमने अगर पकड़ ली कि भाई ये एक यंत्र होता है जिसमें कि इस माध्यम से हम किसी से दूर बात भी कर सकते हैं, कॉल आ भी सकती है, जा भी सकती है, और कई तरीके के उसमें हम जो एक्शंस हैं, एप्स हैं, वो ऑपरेट कर सकते हैं। वो केवल एक विचार हुआ। तो क्या हुआ, हमने जो लाखों चीजें थी उनको एक में स्थित कर दिया। यानी हम डाइवर्सिटी से यूनिटी की तरफ जाने लगे, हम फ्रैगमेंटेशन से इंटीग्रेशन की तरफ जाने लगे। तो खंडित अप्रोच की बजाय हम एक एकाग्र होने लगे। तो जब ये हम इस तरीके से जीवन में देखते हैं चीजों को, तो फिर हमारा उच्च मनस धीरे धीरे एक्टिवेट होता है। और इससे काफी हम देखते हैं, हम देखेंगे कि जीवन में काफी हमारे संबंधों में भी परिवर्तन आता है। जैसे किसी ने, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, हमारा मित्र है या जो भी है, किसी दिन मान लीजिए कि उसने हमसे ठीक से व्यवहार नहीं किया और हमने तुरंत एक कंक्लूजन बना लिया, एक ओपिनियन, एक प्रिजुडिस बना लिया, अरे ये तो अच्छा व्यक्ति नहीं है। या हमने किसी ऐसे ही व्यक्ति को देखा किसी स्थिति में और हमने एक कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया, एक एक फ्रेम के बेसिस पे हमने ये कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया कि वो व्यक्ति ऐसा है। तो ये हमने एक्चुअली अपने लिए एक लिमिटेशन खड़ी कर ली, क्योंकि मोस्ट लाइकली वो व्यक्ति वैसा नहीं भी हो सकता है क्या परिस्थिति रही हो। हमने केवल एक खंड को देखा है, हमने पूरी पिक्चर को नहीं देखा। तो इसीलिए जो जे कृष्णमूर्ति बात करते हैं कि जो हम हमारा मन है, फ्रीडम फ्रॉम द नोन, ये जो नोन है ये हमारे पूर्वाग्रह हैं, ये हमारे कंक्लूजन्स हैं, ओपिनियंस हैं, जो हमने खूब बना रखे हैं और हर क्षण हम बना रहे हैं। तो इनको ना बनाने का जो एक अप्रोच है वो यही, उससे हमारा उच्च मन अनफोल्ड होने लगता है, क्योंकि तब हम चीजों को उनकी समग्रता में देखते हैं, खंड में नहीं देखते हैं। उसी प्रकार से अध्ययन के माध्यम से तो उच्च मनस हो गया, ध्यान के माध्यम से अनफोल्डमेंट ऑफ विजडम। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस पूरे जो चैप्टर का जो मुख्य बात है वो विजडम पे बेसिकली केंद्रित है, क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स में वो आत्म तत्व के बारे में बात कर रहे हैं कि अगला जो उच्च भाई मनस डेवलप हो गया, मतलब अनफोल्ड होने लगा, तो अगला एफर्ट है कि जब हम अपने जीवन को जो हमने अब पढ़ा है, उसको हमने थ्योरी को अध्ययन किया है, फिलोसफीज को अध्ययन किया है, उस तरीके से कोशिश कर रहे हैं अब उस इंटेलेक्चुअल नॉलेज को विजडम में, यानी हम उसको प्रज्ञा में कन्वर्ट करने का स्टेप है। तो उसके लिए वो कह रहे हैं कि हमें ये कोशिश करनी चाहिए
कि अपने अंदर डिवोशन और लव, जो कि मैंने बात कही थी ना कि बुद्धिक अ, जो हमारा प्लेन है और डिजायर एस्ट्रल प्लेन है, उसके इंटरेक्शन से। तो जो अपने अंदर हम डिवोशन यानी भक्ति या लव को, प्रेम को डेवलप करें या पुष्पित करें, उसको पल्लवित करें और उसको अपने दैनिक जीवन का एक अटूट हिस्सा बनाएं, क्योंकि उससे बुद्धिक फैकल्टी जो है वो डेवलप हो, वो अनफोल्ड होती है और जो प्रज्ञा है वो जागृत होती है। तो यानी पहले हमने उच्च मनस को अनफोल्ड किया, ज्ञान प्राप्त किया चीजों का, और जब हम उन्हें जीवन में उतारने लगे, जैसे अब अगर हम इस तरीके से देखें तो पहले हम किसी को अच्छा नहीं मानते थे, अब हमने इस तरीके से, इस अप्रोच से व्यक्ति को देखना शुरू किया, लोगों को देखना शुरू किया, तो क्या बदलाव आएगा? बदलाव ये आएगा कि पहले हम बहुत अगर कट्टर थे किसी मामले में, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी परिस्थिति के प्रति, या हर समय हम कंप्लेंट करते रहते थे कि अरे यहाँ ये अच्छा नहीं है, वहाँ वो अच्छा नहीं है, वो ऐसा है, वो वैसा है, तो हम क्या होंगे, धीरे धीरे माइल्ड होंगे, हमारे अंदर टॉलरेंस आएगा। और हो सकता है कि जिसको हम बुरा मानते थे, अच्छा नहीं मानते थे, धीरे धीरे उसके प्रति हम या तो न्यूट्रल होंगे या एक मैत्री भाव डेवलप होगा। तो वही मैत्री या प्रेम, या प्रेम का यहाँ पे हम व्यक्तिगत प्रेम से ना ले, मतलब प्रेम मतलब जिसको हम कहते हैं अनकंडीशनल या इम्पर्सनल लव की बात हो रही है, तो वो जब डेवलप होगा तो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली जो प्रज्ञा है वो हमारे मन को एनलाइटन करेगी। अब इसमें, और ध्यान भी अध्ययन से कोई अलग नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने अ, अध्ययन किया था चीजों, मतलब कोई भगवत गीता का, थियोसॉफी की पुस्तकों का, या उपनिषद का, या इस तरह से कोई भी, लेकिन एक ऐसी पुस्तक का हमें अध्ययन करना है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको अध्ययन किए बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। और वो पुस्तक हम सभी के पास है, और उसकी विशेषता ये है कि वो पुस्तक कोई और हमें नहीं समझा सकता, वो हम ही को पढ़नी पड़ेगी, और उसकी एक ही कॉपी है, वो हमारी कॉपी हमारे पास है, किसी और की कॉपी उसके पास है, जिसको हम बुक ऑफ लाइफ कह सकते हैं, यानी हमारे जीवन की जो पुस्तक है उसको। और जीवन की पुस्तक क्या है? जीवन की पुस्तक है, जीवन की पुस्तक का अध्ययन करने का मतलब है कि हमारे जितने रिलेशनशिप्स हैं उनको हम अध्ययन करना शुरू करें, और अध्ययन किस तरीके से करें ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जैसा कि अभी हमने बात की कि एक एक्सपीरियंस हुआ हमें, उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम एक ओपिनियन या पूर्वाग्रह भी बना सकते हैं, और उस एक्सपीरियंस को हम विजडम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर है कि उसको इस तरीके से पढ़ें कि जीवन की जो हर घटना है, जो इंटरेक्शन है, वो हमें पूर्वाग्रह के पत्थर की बजाय पर्ल्स ऑफ विजडम यानी प्रज्ञा के मोती देकर जाए, ना कि पूर्वाग्रह के पत्थर। क्योंकि पत्थर इसलिए कह रहे हैं कि पत्थर बोझ बन जाता है, उठे उसको हम उठाए उठाए हर जगह घूम रहे हैं, तो वो हमारे ऊपर एक बोझ है। और मोती ऑफ कोर्स वो एक तरीके से बहुत ही वैल्यूएबल है, प्रज्ञा का मोती। तो हर इंटरेक्शन, हर रिलेशनशिप हमारे जीवन में एक ये पोटेंसी है कि वो हमें इनमें से कुछ भी देके जा सकता है, जिस तरीके से हम उसको लेने की कोशिश करें। और बुद्धि का इंपॉर्टेंस क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि अ, बुद्धि, और मेरे ख्याल से जो पूरा एक तरीके से देखा जाए जो थियोसॉफिकल लिटरेचर है, वो बुद्धि को अनफोल्ड करने का ही मेन उसका उद्देश्य है।
सीक्रेट डॉक्ट्रिन हो, वॉइस ऑफ द साइलेंस हो, लाइट ऑन द पाथ हो, वो और कोई भी इस तरह की पुस्तक हो, भगवत गीता हो, उनका उद्देश्य बुद्धि को ही जागृत करना है। क्योंकि और बल्कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का उद्देश्य अगर देखें, जो पहला उद्देश्य है विश्व बंधुत्व का, वो भी क्या कहता है, विश्व बंधुत्व का केंद्र विदाउट एनी डिस्टिंक्शन। यानी डिस्टिंक्शन क्या है, जाति धर्म भेद ये सब क्या है, ये पूर्वाग्रह हैं मन के द्वारा बनाए हुए। तो उनसे जब मुक्ति होगी तभी विश्व बंधुत्व अनुभव में आएगा। विश्व बंधुत्व यानी प्रेम। तो वो बुद्धि का मतलब क्षेत्र है। तो उसी तरह आप देखें सीक्रेट डॉक्ट्रिन में भी अगर पढ़ें तो कोई क्लियर कट आंसर नहीं मिलते हैं सीक्रेट डॉक्ट्रिन में। जैसे ही हमें लग रहा होता है कि अरे हाँ अब तो हमें ये बिल्कुल एचपीबी ने बिल्कुल लिख दिया, मतलब बस कंक्लूड करने वाली है, एकदम से वो कुछ और हो जाता है वहां। क्यों? वो ऐसा नहीं है कि वो कुछ अनइंटेंशन, वो इंटेंशनल है। क्यों? क्योंकि एक लेवल तक लाके फिर वो ये प्रयास है कि फिर हम उस पे चिंतन मनन करके अपनी बुद्धि के माध्यम से, अपनी प्रज्ञा, अपनी जो इंट्यूशन है उसके माध्यम से उस विषय को समझे। क्योंकि ये भी एक मेथड है इंट्यूशन या बुद्धि को जागृत करने का, कि जब हम किसी चीज को अध्ययन करते हैं, उस पे चिंतन मनन लगातार करते हैं, तो उससे जो माया के पर्दे हैं वो हटते हैं और जो वास्तविकता है वो हमारे सामने आती है। इसीलिए प्रज्ञा जो है वो प्रत्यक्ष ज्ञान यानी डायरेक्ट परसेप्शन ऑफ रियलिटी है। क्योंकि जब तक हमें वास्तविकता नहीं पता चलेगी तब तक हम कुछ भी करेंगे, हम गलत ही करेंगे। तो वास्तविकता हमें तभी दिखाई देती है प्रकाश में, लाइट ऑन द पाथ, यानी जो बुद्धि का प्रकाश है उसी में। और विजडम है क्या? विजडम इंग्लिश शब्द में देखें तो विस यानी देखना, डम माने स्टेट यानी देख, बेसिकली देखने से रिलेटेड है कि सही देखना। ग्रीक में उसको सोफिया कहते हैं, जिसको प्रैक्टिकल स्किल या फिलोसॉफिकल इंसाइट। लैटिन में सेपियंशिया कहते हैं, यानी जो होमोसेपियंस यानी मनुष्य को एक बुद्धिमान प्रज्ञावान जीव कहा गया है। और उसी को बुद्धि को देखें संस्कृत में तो यानी जागृत, जो जानता है। प्रज्ञा यानी प्रत्यक्ष ज्ञान। और इंट्यूशन भी यानी हमारे जो मन के बियॉन्ड की शक्ति है, जो डायरेक्ट परसेप्शन कराती है सत्य का। इनसाइट, तो ये सब बहुत ही सिमिलर वर्ड्स हैं जिनको कि अलग अलग जगह पे यूज किया जाता है। मोर और लेस उनका जो मीनिंग है वो यही है, लेकिन मेन जो एसेंस है उसका वो ये है। एचपीबी उसको कहती हैं कि ये हमारी वो फैकल्टी है जिसके माध्यम से हम मनुष्य और स्थितियों को उनके वास्तविक स्थिति में देख सकते हैं बिना किसी पूर्वाग्रह के। इसलिए हमारा उद्देश्य है कि हम, ये हमारी ड्यूटी है कि हम उसको अपने अंदर जागृत रखें। और विजडम कार्य कैसे करती है, इसको योगी श्री कृष्ण प्रेम ने कहा है कि ये जो हमारी बुद्धि है, जो प्रज्ञा है, ये हमारी अंतः प्रज्ञा है। वो इसलिए वो सही हमें रास्ता दिखाने की उसमें क्षमता है क्योंकि वो समग्रता में देखती है। वो खंड खंड करके नहीं देखती, वो सारे कनेक्शन। जैसे अगर हम स्विच यहाँ ऑन करें, लाइट वहां जलती है या पंखा वहां चलता है। अब जिसको ये मालूम नहीं है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी ऐसे मूव करती है या क्या होता है, तो उसके लिए तो चमत्कार है कि स्विच यहाँ ऑन किया और लाइट वहां जल रही है। तो जब हमें ये कनेक्शन दिख जाता है तब हम कोई भी अ, उसमें चेंज या उसको मॉनिटर या उसको मैनेज कर सकते हैं। और यही जो चित्र हम भगवत गीता में देखते हैं, तो उसमें कृष्ण जो है वो हमारी बुद्धि या अंतः प्रज्ञा के प्रतीक हैं। अर्जुन मन है, और जो रथ है वो हमारा देहात्मा है। घोड़े जो है वो इंद्रियां हैं। तो बेसिकली जब बुद्धि के द्वारा हम, हमारा जीवन चलता है, यानी जब कृष्ण चेतना या क्राइस्ट चेतना, क्रिस्टोस हमें चलाता है, तो फिर हम, हमारा जीवन जो है वो एक हार्मनी में चलता है। क्योंकि फिर ऐसी स्थिति में फिर वो स्टेज हो जाती है एक तरीके से, जिसको हम कह सकते हैं ऑल इज वेल,
हो सकता है बहुत दुर्घटनाएं हो रही हो सकता है बहुत क्रुएल्टी क्राइम्स, लेकिन तब व्यक्ति तब हमारी जो बुद्धि चेतना है वो हमें बताती है कि नहीं, हर चीज अपने नियम या किसी कारण से हो रही है, उसमें हमारा रोल क्या है, कितना है, वो हमें करना है। और इसी को आदि शंकराचार्य जी ने कहा है कि प्रज्ञा वो फैकल्टी है जो हमें हमारे इंडिविजुअल सेल्फ को यूनिवर्सल सेल्फ से एकत्व का अनुभव कराती है, यानी अद्वैत की स्थिति में ले जाती है। और फिर एचपीबी इसको कहती हैं कि ये बेसिकली जो एक संत है उसकी अंतः चक्षु है, जो कि दिव्य दृष्टि नहीं है। ये दिव्य दृष्टि तो एक और नॉर्मल मतलब एक साइकिक पावर हो गई। ये अंतः चक्षु है जिसको कि स्पिरिचुअल इंट्यूशन होने का है, जिसके माध्यम से सत्य और सही और सर्टेन नॉलेज प्राप्त की जा सकती है। अब सोचिए इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा जब व्यक्ति इस अवस्था में आने लगा कि अब उसको अपने अंदर से रास्ता दिख रहा है या पता चल रहा है कि मुझे क्या करना है। तो व्हाट इज द स्टेज? सेल्फ रिलायंस। तब उसको फिर हर स्थिति में वो सॉल्यूशन के लिए इधर उधर नहीं भागेगा और अपने अंदर जाने की कोशिश करेगा कि जो भी स्थिति आई है तो मैं अपने अंदर जाके इसका क्या सॉल्यूशन या क्या नेक्स्ट स्टेप हो सकता है वो ढूंढने की कोशिश करूं। तो ये बहुत ही बड़ा स्टेप है विकास क्रम में कि जब व्यक्ति उत्तर बाहर खोजने के बजाय अपने अंदर खोजने की कोशिश करता है। और इसी को सेल्फ रिलायंस कहा है आई के तैमनी जी ने। और ये बहुत ही जरूरी भी है क्योंकि जैसे जैसे व्यक्ति धीरे धीरे मान लीजिए देहात्मा से उसने डिटैच करना शुरू किया तो और अंदर से अभी और ऐसी स्टेज आती है कि बाहर तो हमने प्रयास करना शुरू किया लेकिन अंदर अगर अभी हमारा मान लीजिए किसी भी कर्म की वजह से अभी कनेक्शन नहीं हुआ या अंदर से वो नहीं आ रहा है तो वो कई बार व्यक्ति फिर वापस अपने पुराने रास्ते पे चला जाता है। जैसे कहते हैं ना, माया मिली ना राम। यानी हम लगता है कि हमने प्रयास किया और अपने अंदर से हम इम्पेशंस हो गए कि हमें, अरे हमने इतना एफर्ट किया हमें कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं है, और फिर व्यक्ति अपने पुराने ढर्रे पे चला जाता है। तो ऐसे में ये इसीलिए कहा गया है कि साथ में ज्ञान के साथ जो भक्ति है, वो प्रेम जो है, वो किसी भी साकार के प्रति, रूप के प्रति या किसी नियम के प्रति वो साथ में रखना चाहिए। क्योंकि ऐसा समय आता है कई बार जब मन कहता है कि अरे कुछ बाहर तो कुछ हुआ नहीं, अंदर भी कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे में जो प्रेम या डिवोशन या भक्ति है वो व्यक्ति को उस मार्ग पे लगाए रखती है और बुद्धि को भी अनफोल्ड करने में सहायता करती है। और ये जो हमारी इनर पावर है बुद्धि, ये हमें सही, हमारा जो जजमेंट है उसमें मैच्योरिटी लाती है, जो हमारा दृष्टि है उसको सही करती है, और जो हमारी लोअर लेवल की जो टेंडेंसीज थी उनसे मुक्त भी कराती है, जिसमें कि कई बार व्यक्ति अगर चला जाए वापस तो पूरा वो जन्म जो है वो खराब हो जाता है। इसीलिए इस स्टेज में वो कह रहे हैं कि जो विजडम है या बुद्धि है उसका अनफोल्डमेंट होता है। और विजडम का इम्पोर्टेंस क्या है पाथ में, वो अभी हम लोगों ने पढ़ा ही, अलग अलग लोगों ने जो लिखा है। आई के तैमनी जी भी यही कह रहे हैं कि विजडम तो बहुत ही जरूरी है और उस बिना उसके आगे बढ़ा ही नहीं जा सकता। लेकिन वो कहते हैं दुर्भाग्य से विजडम के बारे में हमारे जो जो एक आम धारणा है वो एक्चुअली थोड़ी अलग है। क्योंकि आमतौर पे व्यक्ति ये सोचता है कि अरे कोई व्यक्ति बड़ा अच्छे निर्णय कर लेता है किसी काम से रिलेटेड, या वो उसकी लाइफ काफी ऑर्गेनाइज है, तो हाँ वे कहा जाता है अरे वो तो बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है। लेकिन ये जरूरी नहीं है। ये भी हो सकता है कोई व्यक्ति हो जिसने मान लीजिए कोई चोरी करने, मान लीजिए उसका प्रोफेशन है चोरी करना,
तो अपने एक्सपीरियंस से अब वो इतना निपुण हो गया है, उसको सब मालूम है किस टाइम पे क्यों कहाँ जाना है, कहाँ ये पुलिस है कहाँ नहीं है, कौन सी चाबी से क्या खुलेगा क्या, मतलब उसको इतना वो हो गया है कि वो लोगों को सिखा भी सकता है। तो लेकिन क्या वो प्रज्ञावान या बुद्धिमान व्यक्ति है? तो एक्सपीरियंस के बेस पे जो हमने एक अनुभव जो प्राप्त किए हैं उससे जो एक मेमोरी डेवलप हुई है वो एक अलग चीज है, वो स्किल है। जैसे कि हम एक ही काम, हम बैंक में हैं या हम इंजीनियर हैं या डॉक्टर हैं, अब हम 10 साल तक 20 साल तक 30 साल तक वही काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उस काम में हमारी एक निपुणता हो जाएगी। लेकिन वो निपुणता प्रज्ञा या बुद्धि या विजडम है, वो जरूरी नहीं है। ये अलग बात है कि वो व्यक्ति प्रज्ञावान हो सकता है, लेकिन केवल अनुभव नहीं है। तो अकल्टिज्म में विजडम क्या है? अकल्टिज्म में विजडम है, आई के टैमनी जी कहते हैं कि जब जो हमारा माइंड है वो बुद्धि फैकल्टी से पूरी तरह प्रकाशित हो जाता है, वो स्टेज है। वो स्टेज है जहां एक शांति है, एक ऐसी अंतः प्रज्ञा है जो सभी माया के सभी पर्दों को चीर के सत्य को दिखाती है। एक ऐसा ज्ञान है बिना, जिसमें कोई भी गलती की संभावना नहीं है, जो हमारे मन में बहने लगता है और जिससे समस्त जीवन के प्रति एक हमें करुणा का भाव पैदा होता है और हम लोगों के साथ एक एकत्व की भावना का अनुभव करते हैं और एक अहेतुक जॉय या प्रसन्नता वो हमारे अंदर बिना किसी कारण के रहती है। जैसे अभी तक हम सोचते थे हम ये करेंगे तो हमें प्रसन्नता मिलेगी या सुख मिलेगा, नहीं, वो हमारे अंदर रहती ही है, उसका फिर बाहर से कुछ नहीं संबंध रहता। एक सिक्योरिटी व्यक्ति को फील होती है जो बाहर से किसी चीज से नहीं महसूस हो सकती थी, वो सिक्योरिटी ऑटोमेटिक व्यक्ति को फील होती है। या उसको ऐसा फील होता है कि एक डिवाइन, ना फील नहीं होता, अनुभव होता है कि एक डिवाइन प्लान है, उसके माध्यम उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ हो रहा है। तो एक हार्मनी डेवलप होती है लोगों के साथ, स्थितियों के साथ। और भले ही हम किसी का बाहर विरोध कर रहे हो, लेकिन अंदर हमारे शांति ही बनी रहती है। लेकिन इस बात को वो व्यक्ति या तब तक हम उसको नहीं समझ सकते जब तक कि हमारा मन जो है वो बुद्धि के प्रकाश से प्रकाशित नहीं हो गया। और ये सभी जो इसके कॉन्सिक्वेंस हैं बुद्धि के, आई के तैमनी जी कह रहे हैं कि ये किसी भी मात्रा में छोटे मोटे नहीं है। इस स्टेज तक आने में ही जन्म, बहुत मतलब अनेकों जन्म लगते हैं। और लेकिन कई बार ये भी हो सकता है, वो कहते हैं कि जो साधक है उसको इस स्थिति में इतना आनंद आने लगे कि वो आगे जाने की सोचे ही ना। और इसीलिए कई बार जैसे जो लोग भक्ति में होते हैं, वो साकार भक्ति में, तो अपने इष्ट के साथ उन्हें इतना आनंद आता है कि वो उससे आगे जाने का उन्हें वही नहीं होता। जैसे रामकृष्ण परमहंस के बारे में भी कहते हैं, जी के बारे में बात करते हैं कि काली माता को वो बिल्कुल मतलब वो जीवंत बात करते थे। तो लेकिन बाद में हम लोगों ने मेरे ख्याल से वो कहानी पढ़ी होगी, उसमें अभी नहीं जाएंगे। तो ये भी आई के तैमनी जी कहते हैं कि ये भी लेकिन एक स्थिति है इवोल्यूशन की, लेकिन उसके आगे भी एक स्टेप है जो कि स्पिरिचुअल लाइफ ऑफ अ सेल्फ रियलाइज्ड एंड लिबरेटेड बीइंग, जो कि मनुष्य के विकास का परम है। और लास्ट स्टेज जिसमें होती है, जिसमें कि जो हमारी प्रज्ञा है वो आत्म अनुभूति में बदल जाती है, यानी तब हमें जो सत्य है वो बुद्धि के माध्यम से नहीं पता चल रहा होता, बल्कि नोइंग बाय बिकमिंग, यानी तब उसके साथ एक ही हो जाते हैं, तब वहां पे कोई दूसरा है ही नहीं। यानी जिसको शंकराचार्य जी कहते हैं ना, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि सर्वम खलविदम ब्रह्म। तो जब एक ही है तो उसके लिए तो फिर कुछ अनजाना रह ही नहीं जा सकता। और यही वास्तविक जो योग है उसका परम तत्व है। और आगे आने वाले चैप्टर में वो फिर बात करते हैं कि भक्ति
योग, वैसे तो राजयोग जो है, रॉयल योग की, ये एक मार्ग है जिसमें पतंजलि के योग सूत्र में उन्होंने एक्सप्लेन किया है, जो कि विल पे बेस्ड है, यानी संकल्प शक्ति के माध्यम से। उसमें स्पिरिचुअल विल जो है उसका उपयोग किया जाता है मन को प्योरीफाई करने के लिए, उसको नियंत्रण में करने के लिए, और उसकी चित्त वृत्ति को निरोध करने के लिए, जिससे कि व्यक्ति एक समत्व की भाव स्टेज में या समाधि की स्टेज में पहुंचे। और इस तरीके से अगर देखें तो योगी जो है वो अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग व्हीकल्स को यूज करके आत्मिक प्लेन तक वो पहुंचता है, और तब उसकी जो चेतना है वो मोनाड के साथ एक हो जाती है, या पुरुष जिसे कहते हैं, जो कॉन्शियसनेस है उसके साथ एक हो जाती है। ये नीचे से अगर हम ऊपर देखें, ऊपर से नीचे देखें, तो जो वो और जो इन्वॉल्यूशन हुआ था, जो स्पिरिट पदार्थ में आई थी, वो बेसिकली एक एक करके अपने को उससे मुक्त करती है। लेकिन केवल अंतर ये है कि अब जो उसके व्हीकल्स लोअर प्लेन पे हैं वो उसके कमांड में है। पहले तो उसको कुछ अनुभव ही नहीं था, लेकिन अब उसको पूरा अनुभव भी है और कमांड भी है। और यही विकास क्रम का एक तरीके से जो प्लान है, उसको हम लोग थियोसॉफी में पढ़ते हैं। इसी को जीवन मुक्ति, लिबरेशन, निर्वाण, या जो भी शब्द दिया जाए वो कहा है। और यही वो चेतना की परम अवस्था है जो एक योगी प्राप्त करता है। और जो तीसरी स्टेज है राजयोगा की, उसमें आत्म, जो फाइनली सेल्फ रियलाइजेशन है, उसका स्टेज है। और उसको वो तीन स्टेप में कहते हैं कि इंटेलेक्ट फर्स्ट स्टेज में, लव सेकंड स्टेज में, और स्पिरिचुअल विल यानी आध्यात्मिक संकल्प शक्ति थर्ड स्टेज में। और एक छोटा सा एक इमेज वो बताते हैं कि कारण शरीर इंटेलेक्ट, बुद्धिक शरीर बुद्धि का, और आत्मिक व्हीकल आत्मा का। अध्ययन हायर नॉलेज से मन, विजडम बुद्धि, और आत्म रियलाइज, आत्म साक्षात्कार आत्मा का प्रोडक्ट है, अनफोल्डमेंट का। और किस तरीके से होगा वो, अध्ययन, ध्यान, सेवा, चरित्र निर्माण और राजयोग से। और यहाँ पे ये जो चैप्टर है वो अंत होता है। और आगे आने वाले चैप्टर्स में फिर तैमिनी जी आगे के बारे में बात करते हैं, वो आगे लिया जाएगा। धन्यवाद आप सभी का, आपने धैर्य के साथ सुना। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल्स कितने अच्छे थे, प्रैक्टिकल लाइफ से आपने काफी जोड़ के बोला, तो थोड़ी सिंप्लीफाइड वर्जन सुनने के लिए मिला। आई एम श्योर बहुत लोगों को फायदा हुआ होगा। कई बार क्या होता है ना, हम उसी बुक्स को सब पढ़ते रहते हैं, बट जब इस तरह से कोई एनालाइज करे, कोई कॉनोटेशन जोड़ दे, कोई रियलिस्टिक अप्रोच से उसको बता दे, ये बहुत बढ़िया हो जाता है। फिर थैंक यू सो मच, थैंक यू सो सो मच। वेरी नाइस, थैंक यू। थैंक यू। वेरी नाइस। We are already on time, at the closure of the time. Anyways, anyone who would like to add something? I mean, किसी को कुछ एक एग्जाम्पल याद आ गया, या सुनने के बाद एक टर्म कुछ लगता है ना दिमाग में जाके कि हाँ, इसमें मुझे मुझे स्पार्क दिखा, मुझे ये सुनना था। सो मे बी पीपल कैन शेयर दैट, अदरवाइज वी विल डू अ क्लोजिंग प्रेयर। अर्चना जी कुछ कहना चाहेंगे? आपका वीडियो ऑन है। ऐड तो कुछ करना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इतना विस्तार से डिटेल में शिखर जी ने सब कुछ समझा दिया है। पर ये कि जिसको कहते हैं ना कि चीजें पढ़ते हम लोग रहे, पर उसके बारे में एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम और बहुत डीपर चीजें उन्होंने बताई, तो वो सब बहुत अच्छी लगी मुझे। शुरू से एक कंफ्यूजन था, ये आत्मिक, बुद्धिक और उच्च मनस ये कैसे रिलेटेड है हमारी निम्न मनस, एस्ट्रल बॉडी और फिजिकल बॉडी से। नीचे से ऊपर की ओर चीजें ट्रांसफर होती है कि ऊपर से नीचे की ओर होती है, पर वो इनके इस लेक्चर से पता लगा दोनों तरफ से होता है, इन्वॉल्यूशन और इवोल्यूशन। बहुत बड़ा कंफ्यूजन था, कभी सुषमा जी से इस पे डिस्कशन भी बहुत हुआ था। और
हम लोग कन्विंस नहीं हो पाए थे एक दूसरे की बात से, पर आज वो चीज बहुत क्लियर हुई तो बहुत अच्छा लगा। बाकी बहुत नोट किया है और आगे देखेंगे कि कैसे ये उतरे जीवन में। इसके लिए थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने अरेंज किया इतना अच्छा लेक्चर इंडियन सेक्शन में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और शिखर जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much. Thank you. Thank you, Master. Thank you. Thank you. So we would be doing the closing prayer. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Thank you all for joining. Thank you, Shikhar ji. We would see Thank you in you, some other Suparna ji. session soon. Thank you. Yes. See you in Bangalore. Yeah. See you in Bangalore. Thank you. Okay. Take care. Bye.